guests, respected teachers and my dear students. On behalf of our school, I, Mrs. Megha Desai, and my co-host, Mrs. Maithili Vade, are having pleasure to begin this auspicious occasion by welcoming everyone. Today is the special day for us as we are celebrating our 15th annual day, our school's crystal anniversary. Light is a symbol of brightness and prosperity. As sunlight expels the darkness of night, similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness. To make this evening a blessed one, invoke Goddess Saraswati, an embodiment of wisdom, knowledge, and learning by kindling the lamp. I request our Honorable Chief Guest, Dr. Digambar Jaikishan Zawar, Guest of Honor, Mrs. Jyoti Digambar Zawar, our respected committee members and distinguished guests to do the honors of lamp lighting. Deepak Jyoti Parabrahma, Deepak Jyoti Janardana, Deepo Haratu Me Papa Sandhya Deepa Namastute. Ya Devi Sarvabhuteshu Vidyarupena Sanstita. Namastaste, 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 Namo Namah. May the spirit of our prayers guide us in our path, drive our actions, and be the light that never dims. Let's begin the event with this positive vibration around and within us. I request our headmistress, Ms. Rubina Sheikh, to escort our chief guest, guest of honor, rest of the committee members on the dais for the further continuation of the program. We would honor our chief guest, Dr. Digambar Jaikishan Zawar, with a bouquet and a memento as a token of love. I request our trustee and president, Dr. Nandakumar Vartak, to do the honors. I have the pleasure of introducing to you our Honorable Chief Guest, Dr. Digambar Jaikishan Zawar, son of late Shri Jaikishanji Gauri Shankarji Zawar and Srimati Radhabai. Sir has done his BAMS from Ayurveda Seva Sangh, Nasik in 1993, Pune University. He started his first private clinic at Palghar in 1994.
He is one of the leading general practitioner in the territory. Dr. Zawar's CSR project, that is financial aid, revamping and modernization of government rural hospital Palghar, Shaurya Bhuvan Ayodhya, Mahesh Dham Ujjain, Mahesh Sevanidhi Maharashtra. He is trustee of Jeevan Jyot Eye Hospital Palghar Maharashtra and Shaurya Bhuvan Ayodhya Uttar Pradesh. Sir has a fantastic business and social journey from 1994 to 2023. 1994, initiated as medical practitioner at Palghar with small clinic. 1997, medical shop in Parel. 1998, joint venture marketing company Rescue Lab, now Kitemark. 2000, trading of medicines started, finished formulations Grace Pharma. 2007, Impulse Pharma joint venture took over by 2013. 2017, Crooks Pharma Private Limited. 2018, Kamla Life Sciences Limited. 2020, Zedon Pharma Nigeria Limited under commissioning. 2021, Comfort Healthcare Private Limited under commissioning. 2022, KLL Healthcare Private Limited marketing company. 2022, Triofit Nutracare Private Limited. 2022, Trident Medilife Private Limited. 2023, KiteMed Healthcare Private Limited marketing company. Sir is happily married to Mrs. Yogita and blessed with a son and a daughter. Son, Dr. Pushkar, MBBS, BJ Medical College, Pune, and daughter, Miss Palak, studying in St. John's College, Palghar, 4th year, B Pharmacy. His brother is Mr. Rajendra, married to Mrs. Jyoti. They are blessed with son, Dr. Neeraj, MBBS, VM Medical College, Solapur. First, we will start with the academic prizes. Far and away, the best prize that life has to offer is the chance to work hard at work worth doing. With this prizeful saying, let us start our academic prize distribution. I would like to request our chief guest, Dr. Zawar Digambar, to felicitate the students by giving the prizes. Let's begin with our tiny tots. From Junior KG. Third prize secured by two students, Agre Atharva and Patil Darshan. Second prize also secured by two students, Patil Bhumi and Mansuri Ruksar. First prize secured by Kadam Vihan. Very good, students. Keep it up. Class Senior KG, third prize, Sia Singh.
Second prize secured by two students, Nivdunge Sairaj and Jangam Devansh. First prize secured by Kolatkar Anvi. A big round of applause for the students. Class first. Third prize secured by Verma Shraddha. Second prize secured by Tiwari Trisha Kumari. First prize secured by Kini Viha. Excellent students, keep it up. Class 2, third prize secured by Mahajan Vaishnavi. Second prize secured by Anand Kavish. First prize secured by Chaudhary Trupti. Congratulations students. Class 3rd. Third prize secured by Sandane Manashri. Second prize secured by Roniar Ankush. First prize secured by two students, Sheikh Tamanna and Mawani Suhan. Well done students. Thank you sir. Now I request our Honorable Chief Guest, Dr. Digambar Zawar, to address the gathering. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।
आज के इस विशेष आयोजन पर विशेष रूप से उपस्थित इस संस्था के विश्वस्त एवं अध्यक्ष मेरे बड़े भाई डॉक्टर नंद कुमार वर्तक, इस संस्था के विश्वस्त एवं उपाध्यक्ष मेरे मित्र डॉक्टर सूर्यकांत संके सर, महंती सर, चूरी सर, डिमेलो सर, शोभा मैडम एंड इस स्कूल की प्रिंसिपल रूबीना मैडम, मंच के सामने उपस्थित टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, छात्र, उनके अभिभावक, विशेष रूप से उपस्थित मिस्टर एंड मिसेस शाहपुरे, रत्नाकर माने सर, आप सभी को नमन, वंदन, अभिवादन। जय श्री राम। आज के इस आयोजन पर मुख्य अतिथि के रूप में मुझे निमंत्रित करने हेतु जिन्होंने सुझाव रखा, अनुमोदित किया, पारित होने दिया, उन सभी को हृदय से धन्यवाद। MPA मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, इस संस्था से मैं जुड़ा हूं। ये एक इस क्षेत्र की सबसे बड़ी डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन है। उस संस्था में जो सर्वमान्य और अग्रणी व्यक्तिमत्व है वो आज इस मंच पर उपस्थित है। इन व्यक्तियों के सामने प्रथम चरण की कुर्सियों में भी बैठने की मेरी योग्यता नहीं, लेकिन आज आयोजकों ने उनके साथ मुझे मंच साझा करने का अवसर दिया। उनके सन्मुख आज इस प्रबुद्ध सभागार को संबोधित करने का अवसर दिया। आयोजक का हृदय की असीम धरातल से बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों ने मुझे 15 मिनट का समय दिया है, तय सीमा में मैं ये बात समाप्त करूंगा। आयोजक निश्चिंत रहे। इस भव्यतम स्कूल और छात्र अभिभावकों से भरा हुआ सभागार देखकर मुझे मेरी स्कूल का स्मरण हो रहा है। 50 साल पहले यहां से 550 किलोमीटर दूर जलगांव जिला जामनेर तहसील शेंदुर्णी नाम का एक छोटा देहात, जिल्हा परिषद मराठी मुलांची शाळा, माध्यम मराठी स्कूल 3 किलोमीटर घर से दूर, आना जाना पैदल। आसपास के 10-20 गांवों में एकमात्र स्कूल, इसलिए छात्रों की भीड़ ज्यादा। उस समय जैसी हमारी स्कूल वैसे ही हमारे घर कितने निम्न स्तर के थे, उसका वर्णन आपको चंद शब्दों में करता हूं तो उस दिनों की परिस्थितियों का आकलन आप सबको हो सकता है। मिट्टी की स्कूल, जमीन पर फर्श नहीं, ट्यूब नहीं, फैन नहीं, साफ सुथरे जलपान की कोई व्यवस्था नहीं, शौच शुद्धि की कोई व्यवस्था नहीं। घर में भी मिट्टी के चूल्हे पर रसोई करना, घर को गोवंश गोबर से लिंपना और प्रकाश के लिए पीला रंग का 40 वाट का बल्ब, इस किस्म की अति निम्न स्तर की जीवन शैली में हमारा बचपन बीता। पढ़ाई आगे बढ़ती गई। 10वीं की कक्षा, बोर्ड की एग्जाम, 30 किलोमीटर दूर तहसील का गांव जामनेर, यह हमारा एग्जामिनेशन सेंटर। आप सब लोग जानते हैं 10वीं बोर्ड के एग्जाम्स का जो स्ट्रेस आज है उन दिनों में भी था। एसटी बस से जाना, एसटी बस से आना, बस मिस हुई तो 2 घंटा एसटी स्टॉप पर इंतजार करना। परीक्षा के दिनों में होने वाली पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण होती है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन हम तो आने जाने में ही थक जाते थे। 10वीं का निकाल लगा, 150 छात्र परीक्षा में बैठे थे। हेडमास्टर जी ने सभी को एक हॉल में बुलाया और बताया, ये चौक से ये ब्लैक बोर्ड पर मैं नाम लिख रहा हूं, उतने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अन्य सभी ने अगले साल सफल प्रयास करना। हेडमास्टर जी ने नाम लिखना शुरू किया। केवल 15 छात्र उत्तीर्ण हुए
150 छात्र बैठे थे, 15 छात्र उत्तीर्ण हुए। इसका मतलब उस साल 10% निकाल लगा। इन दिनों में सौभाग्यवश कई स्कूलों में मुझे वार्षिक समारोह पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां पर मैनेजमेंट के साथ जब वार्तालाप करता हूं तो जानकारी मिलती है, जैसे आज अभी रुबीना मैडम ने अभी बताया 100% निकाल लगा, वैसे ही हर स्कूल का कई सालों से 100% निकाल लग रहा है और हमारे स्कूल में उस साल 10% निकाला। आप अनुमान लगा सकते हो कि किस किस्म का वहां अध्ययन का, अध्यापन का स्तर हुआ होगा। सौभाग्यवश हेडमास्टर जी ने प्रथम क्रमांक में मेरा नाम लिखा, दिगंबर जयकिशन झव्वर। 1985 में मैं प्रथम क्रमांक से उत्तीर्ण हुआ। डॉक्टर बनने की मनीषा से नासिक पहुंचा। बनना था MBBS डॉक्टर, केवल 1 डिग्री जानकारी थी, असफल हुए। बन गया BMS, डॉक्टर बन के पालघर आया। 23 साल बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस की, ईश्वर की बहुत कृपा रही। गांव से पूरे परिजनों को यहां स्थलांतरित किया। परिजनों के साथ में मिलकर एक छोटा उद्योग व्यापार शुरू किया। सबसे आसान डॉक्टर्स के लिए पहला उद्योग होगा तो मेडिकल स्टोर। हमने मेडिकल स्टोर से हमारा सफर शुरू किया। उसके बाद में इस MID के क्षेत्र में आज हमारे पास 4 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कार्यरत है। एक पारडी में है, एक अफ्रीका में है और कई सारी मार्केटिंग कंपनियों में हमारी हिस्सेदारी है। इस तरह से हमारा सफर बहुत खुशहाली से गया। हमने काफी धन कमाया। समाज के रचनात्मक विधायक कार्यों में हमने हमारा योगदान दिया। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। ये सब मैं आपको बहुत विशेष कारण के लिए, विशेष मकसद से बता रहा हूं कि अति निम्न स्तर की देहाती जीवन शैली से उठकर सामान्य परिवार का एक छात्र अगर इस तरह सफल हो सकता है तो आप तो प्रिविलेज्ड हो। आप बहुत अच्छी परिवार से आते हो, बहुत अच्छी संस्था में पढ़ाई कर रहे हो, आपके गुरुजनों की भी क्षमता बहुत अच्छी है, तो आपका भविष्य अत्यंत उज्जवल होगा, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। सफलता की मैं मेरी परिभाषा बताना चाहता हूं और उसके लिए जो खूबियां, जो आदतें जरूरत है वो बताऊंगा और मेरी बात का समापन करूंगा। निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित समय में प्राप्त करना, नंबर 1। अर्थार्जन के उत्तम स्रोत निर्माण करना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, प्रचुर मात्रा में धन लाभ दे, स्वयं की, अपने परिजनों की सात्विक मांगलिक इच्छा अपेक्षाओं की संतुष्टि हो, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, समाज के रचनात्मक विधायक रचनाओं में अपने योगदान देने की क्षमता को प्राप्त करना, अपने व्यक्तित्व चारित्र पुरुषार्थ अभिगम के साथ समाज में शाश्वत स्वरूप में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता को प्राप्त करना, यह मेरी सफलता की परिभाषा है। हम समाज में देखते हैं कि कई लोग अन्य लोगों की तुलना में अति संपन्न, अति समृद्ध, अति सफल मालूम पड़ते हैं, दिखते हैं। तो ऐसे क्या बातें होगी, ऐसी क्या खूबियां होगी जो इतने सफल बने? विश्व के अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत सफल, प्रेरणादायी व्यक्तियों के आत्मचरित्र अगर आप पढ़ते हो तो आपको कई आदतें समान दिखाई देती है। उन सभी आदतों को अगर हम आत्मसात करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, अनुचरण करते हैं, तो शीघ्र सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ सकती है। उन सभी आदतों का, सभी गुणों का, सभी सद्गुणों का यहाँ पर विस्तार से बताना संभव नहीं। तय सीमा 15 मिनट। मैं कुछ चंद मुद्दों को आपके सामने रखना चाहता हूं। उन सभी लोगों की एक कॉमन आदतें जो थी, वो सब लोग सुबह जल्दी उठते थे, यानी कि रात में जल्दी सोना अनिवार्य है।
क्योंकि 7 और 8 घंटे की निद्रा शरीर मानसिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए संतुलित रहने के लिए विशेष अभ्यास करना। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए आप सब लोग जानते हो कि फिजिकल एक्सरसाइज, जिमिंग, जॉगिंग, जिससे आप फिट रहे। बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए आपको एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स यानी किताबें पढ़ने की आवश्यकता है। फिक्शन या मनोरंजन की किताबें के नहीं, उससे सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। किताबें तो वो पढ़ी जाएगी कि इस विश्व के अत्यंत प्रभावशाली सफल व्यक्तियों के आत्मचरित्र का पठन, अध्ययन आपको करना चाहिए, जिससे आपके मस्तिष्क को सकारात्मक दृष्टि से प्रभावित कर सके और आपके व्यक्तित्व चारित्र को नई दिशा, नया आयाम दे सके। इससे आपका IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ेगा। आपको मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान धारणा, प्राणायाम की रोज निरंतर प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए, जिससे आपका इमोशनल क्वोशंट EQ बढ़ेगा। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आपको स्वयं को प्रतिदिन क्रिएटर, सुप्रीम पावर, गॉड से प्रार्थना के माध्यम से, नामस्मरण के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा। इससे आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट बढ़ेगा। इन सभी बातों के साथ आहार नियम बहुत अत्यंत आवश्यक है। आपको सम्यक मात्रा में, सही समय पर संतुलित शाकाहार करना, नशीले पदार्थों का परहेज रखना, अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति दृढ़ श्रद्धा विश्वास के साथ कृतज्ञता पूर्वक विनम्र भाव से व्यवहार करना। इन सभी सद्गुणों के साथ में अगर सफलता क्रियान्वित करनी है तो उसकी क्या बातें हो सकती है, वो चंद शब्दों में आपको बताता हूं। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट्स। विचारों से संकल्प की प्रवृत्ति होती है और यह संकल्प सिद्धि यानी सफलता की यात्रा की शुरुआत होती है। इस किस्म के दृढ़ संकल्प को अगर अपने मनोमस्तिष्क में निरंतर धारण करते हैं तो एक प्रकार की प्रतिमा अपने अंतर्मन में अंकित होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग जो डिजायर टू बिकम फेमस एंड रिच get reflected into your thoughts, then thoughts get reflected in your action into your habits makes your character gives you attitude मतलब अभिगम। ये अभिगम आपको आपके निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने में कारणवश हो सकता है। Please believe in law of attraction. I personally believe in it. Please believe in power of subconscious mind. I personally believe in it. Please believe in science of affirmation. I personally believe in it. Remember always, you can never forget the supreme power. Please believe in supreme power. Take out quality times for daily prayers. मैं स्वयं प्रतिदिन 3 घंटा ईश्वर की आराधना करता हूं। इट रियली वर्क्स इन डिफिकल्ट टाइम्स। एक इस किस्म का अपना आविर्भाव, इस किस्म की अपने को आत्मविश्वास आता है कि हम ऐसी भावना करके चल सकते हैं कि मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इस पर एक शेर सटीक बैठेगा, फानुस बन के हिफाजत जिसकी हवा खुद करे और क्षमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। Remember always, your born poor is not your fault, but if you die poor is definitely your fault. Remember always, dreaming low is a crime. Executive Chairman, HDFC Bank, respected Deepak Ji Parikh, gives an example of T20 cricket match. He says, 20 overs, 120 ball, set your target to hit 720 runs, means every ball 6 runs. तो अपना लक्ष्य ऊंचा रखो। ऑफ कोर्स हमें अपनी कैपेबिलिटीज का ध्यान रखना चाहिए, अवेलेबल रिसोर्स का ध्यान रखना चाहिए और सेट योर गोल, सेट योर पाथ, ड्रॉ द पाथ विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, अपने मित्रों के
शुभचिंतकों के साथ, और पुट इंटेंस हार्ड वर्क, पुट इंटेंस स्मार्ट वर्क, सक्सेस इज योर्स। आपको कभी भी निराश होना नहीं, कभी गिव अप करना नहीं। असफलता तो उन्हें मिलती है जो रुक जाते हैं। सफलता अगर भविष्य में आपको प्राप्त हुई तो आपके मनोधारणा कैसी होनी चाहिए? सफलता का श्रेय कदापि स्वयं के पुरुषार्थ को ना दे, इसे ईश्वर को अर्पित करें। आप ऐसा समझे कि ईश्वर ने इस विशेष काम के लिए आपका चयन किया है। प्राप्त सफलता, प्राप्त धन का विनियोग, निवेश भी उसके मर्जी से करे। एक विश्वस्त बन के करे, ना कि मालिक बन के करे। आप हमेशा निरंतर स्मरण में रखें, आपकी सफलता में अनेक व्यक्तियों का, अनेक विभूतियों का, अनेक महानुभावों का, अपने मित्रों का, परिजनों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में योगदान होता है। आपको इसका निरंतर स्मरण रखना चाहिए। इससे क्या होगा? प्राप्त सफलता, प्राप्त धन आपके सर चढ़ बोलेगा नहीं, आपके पैर निरंतर जमीन पर बने रहेंगे और आपके आचरण में सादगी, सात्विकता आएगी, जिससे आप समाज में विशेष मान प्रतिष्ठा के लिए प्राप्त होगे। सफलता प्राप्त होते ही आपको कुछ विशेष जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम चरण की सफलता प्राप्त होते ही आपने अपने परिजनों के उत्थान के लिए काम करना। द्वितीय चरण की सफलता प्राप्त होते ही समाज के उत्थान के लिए काम करना। तृतीय चरण की सफलता प्राप्त होते ही अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। आज यहां पर उपस्थित छात्र, अभिभावक, गुरुजनों को विशेष निवेदन है कि आज स्वतंत्रता के समय, जैसे आज का थीम पैट्रियोटिज्म है, बलिदान के लिए योगदान की आवश्यकता है। यहां पर उपस्थित छात्रों को भविष्य में विद्यार्जन करने के लिए, नौकरी के लिए, अपने करियर एक्सप्लोर करने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं। इनके मनोमस्तिष्क में अगर परदेश जाके अपना करियर ढूंढने का मन बन रहा होगा, उस किस्म की कल्पना सृजित होती होगी, तो उसे रोके। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारतवर्ष बड़ी तेजी के साथ विकसित हो रहा है। 2047 में आप लिख लो, ये एक विकसित देश बनेगा, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, महासत्ता बनेगी, विश्व गुरु बनेगी। यहां पर अनंत विकल्प आपके नौकरी के, उद्योग व्यापार के उपलब्ध है, उपलब्ध होने जा रहे हैं। भारतवर्ष में जो लोग रहने वाले हैं, भारतवासी और भारतवर्ष का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। मैं जिस आविर्भाव से, अभिगम के साथ आपके समक्ष मेरे मंत्रों को प्रस्तुत कर रहा हूं, मेरे व्यक्तित्व चरित्र को जिन्होंने दिशा दी, आयाम दिया, उन सभी विभूतियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूं। इस श्रृंखला में इष्ट दैवत भगवान दत्तात्रेय, उनका पूरा परिवार, मेरे नाना जी, नानी जी, मेरी माता जी, पिताजी, मेरे बंधु, मेरी सहचारिणी जो यहाँ पर उपस्थित है, इन सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सब अपने जीवन में प्रतिदिन सफलता की नई ऊंचाई हासिल करें। स्वयं का नाम, समाज का नाम, परिवार का नाम, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। ऐसा अपने पुरुषार्थ का परिचय दे कि इतिहास भी अपने लिए एक पन्ना रिक्त रखे। उस रिक्त पन्ने को हमने अपने व्यक्तित्व चारित्र से रंगीन करना है। हम जब पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, करनी कर चलो ऐसी, हम हंसे जग रोए। बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार इस तरह कि पर्दा गिरने पर भी तालियां बजती रहे।
आपकी जोरदार तालियों के बीच इस मंगल कामनाओं के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूं। जरूर फिर मिलेंगे किसी अन्य दिन किसी अन्य मंच पर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।